Question number 6. This question is of normal distribution. The lengths of female snakes of a particular species are normally distributed with mean 54 cm and standard deviation 6.1 cm. This question is of normal distribution. Mean length is given and the standard deviation of the length is 6.1 cm. ये भी given है. Find the probability that randomly chosen female snake of this species has length between 50 cm and 60 cm. तो यहाँ first of all we write probability, no, sorry, x follows the variable x is the normal variable. X follows the normal distribution with parameters mu and variance sigma square. ये देखें यहाँ सिग्मा जो है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. जब इसका स्केयर ले लेंगे तो ये वेरिएंस बन जाता है. दिस इज द स्प्रेडनेस ऑफ द डेटा. म्यू शोज हेयर द मीन. This notation is used for follows. X is the normal variable. X follows normal variable with parameters mu and variance sigma square. So in the question, mu is given, that is mean is 54 cm and standard deviation is 6.1 cm. So we write here mu is 54 cm and sigma is 6.1. यहाँ पे स्केयर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ वेरिएंस शो करना है. तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी that randomly chosen female snake of this species have length between 50 cm and 60 cm. So we will write the probability in inequality. We have to find probability of x lies between 50 cm and 60 cm. So first of all, we convert this normal variable into standard normal variable by using this relation. वो रिलेशन ये है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा. यहाँ पे z क्या है? z इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल. यहाँ पे x क्या है? x इज द नॉर्मल वेरिएबल. इस नॉर्मल वेरिएबल को आपने स्टैंडर्डाइज करना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है ताकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देख सकें. तो इसको x को हम z बनाएंगे. तो z लिख लेते हैं इसको x माइनस म्यू ओवर सिग्मा. x इज 50, mu is 54, so 50 minus 54 over sigma is 6.1. In the same way, x is 60, 60 minus 54, x minus mu over sigma. X minus mu over sigma. Probability of this, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम. वैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट माइनस 0.6557 एंड इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. दिस विल बी 0.9836, 0.9836. नो अब हमने क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. So probability of this shows, this notation shows phi. इसको phi बोलते हैं इस notation को. This shows in this chapter probability. This notation is the notation for probability. Probability of 0.9836, 0.9836 minus probability of this minus 0.6557 minus 0.6557. अब हमने क्या करना है? अब हम यहाँ पे ये z की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.9836 ऐसा रहेगी माइनस यहाँ पे ब्रैकेट इंसर्ट करेंगे हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ. अब इसको पॉजिटिव लेंगे
वन में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6557। तो अब हम इस माइनस के साइन की वजह से ये साइन विद इन ब्रैकेट जो दो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो वही गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.9836 माइनस वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6557। अब हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये दो प्रोबेबिलिटीज जो हैं z की वैल्यू के अगेंस्ट, ये दीज आर द वैल्यूज ऑफ z के अगेंस्ट हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, तो वी गेट प्रोबेबिलिटी इज, इसको टेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखेंगे, इसका आंसर होगा 0.8375 माइनस वन प्लस, और इसको हम टेबल में से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखेंगे, वी गेट 0.7441। तो फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे, 0.8375 माइनस वन प्लस 0.7441, तो फाइनली वी गेट 0.582। This is the answer correct to the significant figure. The next part of this question is length of male snakes of this species also have a normal distribution. The length of male snakes of this species also have a normal distribution. A scientist measures the length of a random sample of 200 male snakes. 200 male snakes means the total number of snakes हमारे पास 200 हैं of this species. He finds that 32 have lengths, 32 out of 200, 32 have lengths less than 45 cm, and 17 snakes have lengths more than 56. So this means that out of 217 जो हैं वो lengths more than 56. Find estimate for the mean and standard deviation of the lengths of male snakes of this species. In this part, we have to find mean and standard deviation of the lengths of male snakes. So first, data is given that probability of x is less than 45, लेंथ लेस देन 45, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लेस देन 45 जो है वो कितने हैं, 32 हैं आउट ऑफ 200, तो प्रोबेबिलिटी होगी 32 ओवर probability will be 32 over 200, so we get 0.16. So we write here 0.16. So now next probability of the snakes having length more than 56, वो 17 है, तो 17 over 200 होगी probability. So we write here probability of x is greater than 56 is equal to, इसकी probability होगी 17 over 200 which is equal to 0.085. So we write here 0.085. Now we have to find the mean and standard deviation from here. तो फर्स्ट, अब हमारे पास दो इनक्वालिटी, दो इक्वेशंस बन जाएंगी। यहाँ पे फर्स्ट हम इसको लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 45, तो इस एक्स को हमने जेड में चेंज करना है। जेड क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, तो सो वी कैन राइट इट
probability of z is less than x minus mu over sigma. 45 minus mu over sigma, that is equal to 0.16. अब हम इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लेस का साइन है और प्रोबेबिलिटी भी 0.16 है, वो 0.5 से लेस है प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे लेस का साइन, तो ये हमें ये हम टेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से नहीं देख सकते, तो बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.16 होगी। ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। दिस इज मीन 0, और यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ है लेस देन, दिस इज द वैल्यू ऑफ z, और इस लाइन के अलॉन्ग वैल्यूज होंगी z की वैल्यूज होंगी लेस देन दिस, लेस देन 45 माइनस म्यू, प्रोबेबिलिटी जो है 0.5 से कम है। तो सो दिस मीन्स कि यहाँ पे z की वैल्यू होगी वो, दिस प्रोबेबिलिटी जो है ये हमारे पास 0.16 हो सकती है। दिस इज द वैल्यू ऑफ z, ये z की वैल्यू है। इससे लेस वाली ये प्रोबेबिलिटी जो है ये 0.16 हो सकती है, बट ये नेगेटिव साइड पे लाई करती, तो हम फाइंड नहीं कर सकते, z की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। तो हम, क्योंकि हमने फाइंड तो प्रोबेबिलिटी करनी है, तो सो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट द मीन। अगर हम ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, जितने डिस्टेंस पे हमने ये पॉइंट लिया है, z की वैल्यू है उतना ही वो यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट पॉजिटिव साइड पे। और ये प्रोबेबिलिटी आप देखें, ये एरिया और ये एरिया सेम है, तो ग्रेटर देन दिस दिस और ये z की वैल्यू इससे ग्रेटर वाली प्रोबेबिलिटी भी उतनी है, और स्मॉलर वाली इस वैल्यू से, z की वैल्यू से स्मॉलर वाली प्रोबेबिलिटी भी उतनी है। बट हम ये नहीं लेंगे और इसको लेंगे, क्योंकि करनी तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड है, क्योंकि ये नेगेटिव z यहाँ पे लाई कर गया है, हमने पॉजिटिव बनाना है, तो उसको बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सो ग्रेटर देन का साइन हम यहाँ पे अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। So we can write it as probability of z is greater than 45 minus mu over sigma, जो है ये भी 0.16 होगी। तो अब हम ग्रेटर का साइन आ गया, हमने यहाँ पे लेस का साइन बनाना है, क्योंकि हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लेस का साइन यूज होता है, तो फिर हम टेबल में से देख सकते हैं। तो उसको लेस बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 minus probability of z is smaller than 45 minus mu over sigma is equal to 0.16। तो अब हम यहाँ पे लेस का साइन आ गया, तो ये हम इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन यूज फाइव, 1 माइनस फाइव z, फाइव 45 माइनस म्यू 1 माइनस 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, हम लिख सकते हैं इसको। हमने इस चीज को फाइव की टर्म में लिख लिया है, फाइव यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को ही शो करता है, इज इक्वल टू 0.16। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 1 minus 0.16, this becomes 0.84,
अब हमने क्या करना है, अब हम फाई इनवर्स दूसरी साइड पे आ जाएगा, फाई इनवर्स दिस शोज दैट कि हमें उसको रिवर्स ऑर्डर में देखना है। 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाइव इनवर्स 0.84। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो सो फाइव इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखेंगे तो फाइव इनवर्स 0.84 वी गेट। अब इसको पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेसेस में प्रोबेबिलिटी गिवन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, तो सो हम इसको 0.84 को 0.8400 लिख सकते हैं ताकि हमारे लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखना इजी हो जाए। तो यहाँ इसको देखेंगे तो वो 0.8400 को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखेंगे वी गेट 0.994। तो सो 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.994। तो अब हमने देखें यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये हमने ये लिखा था एक्चुअली, जो ये देखें यहाँ लेस का साइन है, अपनी तरफ से हमने वो ग्राफ शो करके मैंने बता दिया था आपको कि लेस देन की भी प्रोबेबिलिटी 0.16 हो सकती है, ग्रेटर देन की भी। तो वो ये हम नहीं था ले सकते तो हमने ग्रेटर बना लिया उसको, ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी भी 0.16 हो सकती है। तो सो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्चुअली जो हमारा z है वो नेगेटिव साइड पे लाई करता था, ये हेल्प लेके हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से ग्रेटर का साइन लिखा था। तो सो इस केस में जब, अब आपने इसका ध्यान रखना है, जब लेस देन का साइन हो और 0.5 से प्रोबेबिलिटी भी कम हो तो फिर आपने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से लिख लेना, लेकिन आखिर में इक्वेशन बन जाए तो उसके एक साइड पे आपने नेगेटिव का साइन लगा देना है, क्योंकि एक्चुअली z जो था वो नेगेटिव साइड पे लाई करता था। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं, म्यू और सिग्मा में ये एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। 45 माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 0.994 sigma. From here we can make subject mu is equal to 45 minus 45 plus 0.994 sigma. Mu is equal to 45 plus 0.994 sigma. Let this is equation number 1। अब हमने एक इक्वेशन बना दी है, एक और इक्वेशन बनेगी क्योंकि स्टार्ट में अभी हमने इसको डील किया है। अब दूसरी एक और इक्वेशन है, इसको हम डील करेंगे। यहाँ पे वो केस नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन है और ये 0.5 से कम है 0.085, तो दिस इज सिंपल केस। तो अब हम इसको ले आते हैं, इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन, अब हमने x को z में चेंज करना है उसी तरह यहाँ पे। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा दैट इज इक्वल टू 0.085। अब हमने ग्रेटर को स्मॉलर बनाना है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सो वी विल राइट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज स्मॉलर देन 56 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.085। तो अब ये इसको हम फाई की टर्म में ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन का साइन आ गया तो हम इसको फाई की फॉर्म में लिख सकते हैं और थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 56 माइनस म्यू और सिग्मा
is equal to 0.085. अब रीअरेंजिंग, अब हम इसको लेफ्ट पे ले जाते हैं और इस टर्म को राइट पे ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो सो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ 56 minus mu over sigma is equal to 1 minus 0.085, just become 0.915, 0.915. So now 56 minus mu over sigma is equal to 5 inverse 0.915. अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे ना, फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, ये आएगा 1.372। तो सो 56 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 1.372। नो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब देखें इक्वेशन, वी हैव टू इक्वेशंस, यहाँ भी ये इक्वेशन जो 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में म्यू और लेमडा इन्वॉल्व हैं, और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें भी दो ही अननोन है, वो लेमडा और सॉरी म्यू और सॉरी ये मैंने क्या दिया है, सिग्मा, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू। इस इक्वेशन में भी सिग्मा और म्यू इन्वॉल्व है, और इस इक्वेशन में भी सिग्मा और म्यू इन्वॉल्व हैं। तो सो वी कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कि म्यू और सिग्मा की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो वो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा। तो वी गेट फाइंड सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, फाइनली वी गेट म्यू इज इक्वल टू, ये आपने खुद सॉल्व कर लेना है, mu is equal to 49.6, correct to 3 significant figure, and we get sigma is equal to 4.65. This is the answer.